Are you getting it? So, beta, what I decided is कि आज I would be also solving that question number 1 again, because as I said, majority of you made a mistake in that sum. बहुत सारे जनों की mistake हुई है. So what I'm doing is I'll be doing that sum again. Everybody take out pamphlet फटाफट. Question number 1 पे चलो. If you have solved that question 1, that's okay. We'll be solving it once again. Don't bother yourself कि whether you have done it or not. We'll be doing it once again. हम फिर से कर रहे हैं, तो फटाफट पैम्पलेट निकालेंगे. Everybody, take out your pamphlet. Sum number 1. Let's start. But everybody, everyone ready with question number 1? But let's start reading the sum. Let's start reading the sum. Mr. A sold goods to Mr. B as detailed below. 5/5/2017 3000 के goods हमने बेचे. 12/5/2017 we sold goods of 1500. 19/5/2017 3500, then 26/5, 16 and 36, and these were the value of the goods which were sold. 3000, 1500, 3500, 2250, 2000 and 1000. The payments were agreed to be made by bills payable underline 90 days. बेटा यहाँ पर हर एक बिल के लिए we have given them a credit of 90 days. Okay. However, Mr. B wanted an arrangement for the payment of all the bills to be made on a single date. Calculate the date on which such payment can be made without the loss of interest to the party. Beta, come on, make the table fatafat. Beta, make the table fatafat. Make the table fatafat. Give the heading, table showing average due date. 2-3 टेबल बनाने पड़ेंगे. We have to make 2-3 tables. First, जो हमारा एवरेज ड्यू डेट का जो मेन टेबल है वो हमें बनाना है. सेकंड, ड्यू डेट्स फाइंड करने के टेबल बनाने पड़ेंगे हमें. ड्यू डेट्स, बिकॉज हर एक डेट में हमें 90 डेज ऐड करने पड़ेंगे. So we have to make a second working for calculation of due dates. Third, we would want the number of days from the base date. So 3 workings are to be made. Come on. 3 tables to be made. Make it fast. This is what I'm trying to say. इस तरह से आपका टेबल बनेगा. पहला अपना एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन का. Then working note number 1, calculation of due dates. Then working note number 2, number of days from the base date. ये 3 टेबल हमें बनाने पड़ेंगे. I am giving you better 2 minutes. Come on, make it fast. टेबल फटाफट बना लेंगे. I again repeat, जिन्होंने सम कर लिया है फिर से करेंगे मेरे साथ. फिर से you have to do it once again. Come on, let's start. Let's start. Give me a thumbs up when you complete the format. Sir, Dhruv, good morning. Dhruv, good morning. Sir, બધાના વિડિયો ઓફ છે અત્યારે. each and every ના બધા વિડિયો ઓફ છે.
બેટા થોડો સમજો કે બેટા 9 વાગ્યાનો લેક્ચર મેં રાખ્યો હોય, અડધા લોકો બ્રશ કર્યા વગર ઉઠ્યા હોય, અડધા લોકો સોફા પર બેઠા હોય, બરાબર છે, અડધા લોકો ઊંઘમાં હોય, આંખ ચોડતા હોય, તો બેટા કેવી રીતે એ લોકો વિડીયો ઓન કરી શકે? હું સમજી શકું છું. એટલે તું કેટલું પણ કહીશ, એ લોકો નથી ઓન કરવાના વિડીયો, બીકોઝ દે આર મતલબ દે આર નોટ વેલ પ્રિપેર્ડ ટુ સ્ટાર્ટ ધેર વિડીયો. એ લોકો બુક્સ પણ લઈને બેઠા હશે કે નહીં શું ખબર, ખાલી પ્રેઝન્સ માટે આવી ગયા છે. એટલે નોટ ટુ વરી બેટા, તું ટેન્શન ના લે, તું ટેન્શન ના લે. ઓકે સર. બેટા is the are the formats made? 3 formats to be done. Give me a thumbs up जिन्होंने फॉर्मेट बना लिया फटाफट. Give me a thumbs up. The format is done. Very good, very good, very good. Let's start. Come on beta, let's start. Let's start. I am also starting that sum. Yes Sujal, कोई डाउट Sujal? सर आंसर 22 ऑगस्ट 2017 आवे छे आंसर. बेटा मेरे को नहीं खबर है, मैंने सम ही नहीं ओके किया सर. है बेटा, कैसे मेरे को पता चलेगा बेटा? मैं कोई मैजिशियन हूँ क्या सम स्टार्ट करने से पहले आंसर दे दूं यार? ओके सर. हम you have to wait for the answer to come. Okay, please Okay, be sir. patient. You have to wait. Come on, let's start. Let's start. The first. पहला बिल जरा चेक करो. It's made on what date? पहला बिल कौन सी डेट पे बना है हमारा इनवॉइस, जरा देख लेंगे. Let's see. It was 5/5/2017. Beta 5/5/2017. The period already mentioned, it's 90 days. The period already mentioned, it's 90 days. Okay. Now 90 days का है और हम अमाउंट यहां पर लिख दे रहे हैं. The amount of the bill comes to 3000. Okay. सो 5/5 से हमें 90 डेज कैलकुलेट करने हैं. तो मैं अपनी पहली वर्किंग में जा रहा हूं, 5/5 से 90 डेज मुझे कलेक्ट करने हैं. मतलब मई आ जाएगा. मई के कितने दिन है पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं. मई के कितने दिन है? 5/5 मतलब 5 डेज ऑफ मई आर गॉन. सो मई में टोटल 31 डेज रहेंगे. मई में टोटल 31 डेज हैं. तो मई के 26 डेज. ओके. जून के रहेंगे 30 डेज. ओके. जुलाई के रहेंगे 31 डेज. सो बेटा 31 and 20 is 51. 51 plus 26. बेटा 51 plus 26 that is 77. ऐसा कुछ आएगा क्या? 87 आएगा. 87. और अगस्त के अगर हम देखें अगस्त, तो इट वुड बी 3 days which will complete our 90 days. जरा चेक करो. अगस्त के 3 दिन कुछ अपने 90 डेज कंप्लीट कर देंगे. जरा चेक करो आ रहा है ऐसा आंसर? बेटा अगस्त 3 के 90 डेज नहीं हो रहे हैं. बेटा क्या आपका क्या आंसर आ रहा है? आपका क्या आंसर आ रहा है? 90 डेज कब कंप्लीट हो रहे हैं? 90 डेज कब कंप्लीट हो रहे हैं? कैलकुलेट करो चलो. (26 + 30 + 31 87). और उसमें हमने अगस्त के 3 दिन जोड़े तो 90 डेज हो जाते हैं अगस्त के 3 दिन जोड़ने पर. लेकिन हमको वो 3 दिन वो तो 90 डेज खत्म करने में रहेंगे. वो 3 डेज तो 90 डेज हमारे खत्म करने के रहेंगे. इसमें हमें और क्या ऐड करना है? इसमें वी हैव टू ऐड ग्रेस डेज ऑफ 3. सो अगर हम ग्रेस डेट ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर अगस्त 6 आ जाएगा. मेरा फाइनल आंसर विल बी अगस्त 6.
So that would be my due date. यहाँ पर लिख देंगे, it will be 6th of August 2017. बेटा 6th of August 2017. बेटा yes or no? बेटा yes or no? सेकेंड वाले पे चलते हैं, चलो बेटा लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड वन. बेटा लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड वन. बेटा विच वन इज द सेकेंड? 12/5/2017. Again 90 days of credit. The amount is 1500. The amount is 1500. 12/5. सो वापस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मई के बेटा 12 डेज निकल गए. मई के 12 डेज निकल गए तो 19 डेज बचेंगे. जून के बेटा जून के पूरे 30 डेज. जुलाई के पूरे 31 डेज. सो 19 प्लस 30 बेटा 49. 49 प्लस 31 इट्स 80. तो अगस्त के हमारे 10 डेज हमको लेने पड़ेंगे, तब जाके 90 डेज कंप्लीट होंगे. एंड ग्रेस विल बी फॉर 3 डेज. सो बेटा मेरा फाइनल आंसर अगस्त 13. दैट वुड बिकम माय ड्यू डेट अगस्त 13. सो 13th of August 2017. 13th of August 2017. That's my answer. Check it up. 13th of August 2017. Okay. But how many of you got the answer 13th August before I calculated? Before I calculated, आपका आंसर आ गया था 13. 13/8 आप लोगों का आंसर आ गया था. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. But now what I want from your side, go on to the third one and get me the due date. Come on and send me the message. Go on to the third one. The third bill is on 19/5/2017. वापस 90 डेज का क्रेडिट हम करेंगे. बट अब मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं, आप लोग मेरे को मैसेज करके दो कि 19/5 का क्या कब आएगा ड्यू डेट. 19/5. स्तुति पंड्या 2017 से निकल के 2020 में पहुंच गई है. 3 साल आगे आ गई है पंड्या. बढ़िया बढ़िया बेटा. जिन जिन लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू. आप लोगों ने सबने सही आंसर दिए हैं. बेटा एक का गलत आंसर आया. यशवी गांधी का आंसर गलत आ रहा है. यशवी गांधी का आंसर गलत है. बेटा 19 मई को अगर हमने किए, सो मई के हमारे कितने दिन निकल गए? 19 डेज निकल गए, तो 12 दिन बचेंगे. देन जून के 30 डेज. जुलाई 31 डेज. एंड अगस्त का अगर हम देखें तो 12 and 30 is 42. 42 and 31 is 73. तो 73 में और 17 डेज हम फाइंड आउट करें तो अगस्त 17 को हमारे 90 डेज खत्म होते हैं.
ग्रेस डेज अपने आएंगे 3 दिन के. सो अगस्त 20 will be my due date. August 20. So 20 August 2017 will be my due date, and the amount comes to 3500. The amount comes to 3500. Fourth bill due on 26/5/2017. Again 90 days of credit. Amount is 2250. But I'm waiting. Fourth वाले का मैसेज करो. फोर्थ वाले की ड्यू डेट का मैसेज करो. बेटा फोर्थ वाले की ड्यू डेट का मैसेज करेंगे. बेटा बढ़िया, जबरदस्त. बेटा जितने लोगों ने भी चैट किया है आंसर उन सब का सही आ रहा है. लेट मी ऑल्सो डू दैट. हमने 26 मई को बनाया है, तो मई के 26 दिन निकल गए, तो 5 दिन बचेंगे. 5. देन जून के पूरे 30 डेज. जून के पूरे 30 डेज. देन जुलाई के भी पूरे 31 डेज. अगस्त का अगर हम देखें, अगस्त, सो 35 and 31 is 66. तो 66 में और 24 डेज हम ऐड करेंगे. 66 में 24 डेज हम ऐड करेंगे तो अपने वो खत्म हो जाएंगे 90 डेज. फिर 3 दिन का ग्रेस. 3 दिन का ग्रेस, तो अगस्त 27 will become my due date. August 27 will become my due date. So 27 August 2017 will become my due date. 27 August. Then 5th 01/06 2017. But a 01/06 2017. अगेन 90 डेज का हमको क्रेडिट मिल रहा है. सो बेटा 1/6 पहली जून से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. चलो पहली जून से, कम ऑन स्टार्ट. आई एम वेटिंग. 1 जून से स्टार्ट करो. चलो आई एम वेटिंग. हम्म 292929 इरबास का गलत आ रहा है. कृष्मा शादी वाले का आंसर गलत आ रहा है. चलो बेटा मैं करता हूं बेटा. जून. सो अगर हमने पहली जून को बनाया तो जून के हमारे पहला दिन निकल गया, तो 29 डेज बचेंगे जून के. देन जुलाई पूरे 31 डेज जुलाई के. कहना से अगस्त के भी पूरे 31 डेज. 29 and 31 is 59 days. तो अगस्त अगस्त के 29 and 31, सो टोटल 60 डेज होते हैं. तो अगस्त के 30 दिन
90 दिन हो जाएंगे, 29 एंड 31 60 एंड अगस्त के 30, तो टोटल 90 डेज हो गए। 90 डेज के बाद हमको ग्रेस 3 दिन और ऐड करने हैं, तो ग्रेस के अगर हम 3 डेज ऐड करें तो 30 अगस्त है, तो 31 ऑफ अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, सो बेटा सितंबर 2, that would be my due date. 2nd September 2017 will be my due date. 2nd September 2017 will be my due date and the amount is 2000. बेटा 2nd सितंबर आएगा, कुछ लोगों ने फर्स्ट लिख दिया, कुछ लोगों ने और गलती करी, किसी लोगों ने देखो 3 दिया है, 3 तारीख लिखे हैं, 3, आर्ची गांधी भक्ति ने 3 लिखा, रिद्धि चौहान ने भी 3 लिखा। बेटा अगस्त में 31 डेज होते हैं, मारा बापा अगस्त में 31 डेज होए। कृष्णा ने 1 लिख दिया। कैसे कर लेते हो यार, ऐसे ऐसे कैसे कर लेते हो गिनने में दिन यार, ऐसे गलती कैसे कर रहे हो। लास्ट कम ऑन, 3-6 को हमने बिल बनाया है, 3-6 स्टार्ट करो, चलो 3-6। अभी तो अपने बेटा ड्यू डेट्स में ही अभी तो हम अटके पड़े हैं, पता नहीं अभी बेस डेट कब आएगी, नंबर ऑफ डेज कैसे करेंगे, जरा जल्दी। 3-6 2017, number of days are 90 days again, number of days are 90 days again। तो अगर हम स्टार्ट करें जून, सो बेटा जून में हमने अगर 3 तारीख से बिल बनाया है, जून में हमने 3 तारीख से बिल बनाया है, सो 30 डेज होते हैं, तो जून के 27, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31, so 31 and 31 62 62 and 27, beta 62 and 27 is 89, beta 62 and 27 is 89। तो सितंबर में अपने को कितने दिन लेने के जरा चेक करो, सितंबर में अपने को कितने दिन लेने का, सितंबर का 1 दिन लेने का, 1 डे, जिससे हमारे 90 डेज खत्म हो जाएंगे। एंड देन ग्रेस के हमारे 3 दिन ऐड करो, तो सितंबर 4 will become my due date, 4th of September, but 4th of September 2017 will become my due date। एंड अगर अमाउंट हम देखें तो 1000 आ रहा है, अमाउंट अगर हम देखें तो 1000 आ रहा है। 4/9/2017, 4/9/2017, 4/9, बढ़िया। कम ऑन बेटा, आर वी नाउ रेडी टू कैलकुलेट विच विल बी अवर बेस डेट। अपना बेस डेट कौन सा आएगा, क्या हम वो फाइंड आउट करने के लिए तैयार हैं? विच वुड बी माई बेस डेट, गिव मी अ थम्स अप, बेस डेट, थम्स अप। अक्षा अनम्यूट, अक्षा। सर बेस डेट 6 अगस्त आएगी। 6 अगस्त आएगी, कहना है हर एक ड्यू डेट में सबसे अर्लीस्ट, द अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट विल बी अवर बेस डेट। तो चलो बेटा उसको बॉक्स कर देंगे, एवरीबॉडी बॉक्स द बेस डेट, 6/8/2017, दैट्स अवर बेस डेट। सो वो मैं यहां पर लिख देता हूं, बेस डेट है अपनी 6/8/2017। okay, now beta let's go on to our second working, calculation of number of days from the base date। let's go on to our second working, calculation of number of days from the base date। अच्छा एक काम करूं बेटा, एक काम करूं, पहले वाले का मैं आंसर दे देता हूं, बाकी वाले के तुम फाइंड आउट कर लोगे। पहले वाले का मैं कर दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, तुम भी क्या याद रखोगे कि कितनी मेहनत करता हूं मैं।
ओके, फर्स्ट वन का मैं तुम्हारे लिए करके दे रहा हूं, चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट वन 6-8 से हमको 6-8 तक के दिन गिनने हैं। सो बेटा आवर आंसर कम्स टू 0 days। 6-8 to 6-8 will be 0 days। ओके, सेकेंड वाला करते हैं, चलो सेकेंड वाला करते हैं। हमें 6-8 2017 से हमें जाना है 13-8 2017 पर। बेटा काउंट द डेज ऑन योर फिंगर। इसमें खाली अगस्त के ही दिन आएंगे, काउंट कर लो बेटा ऑन योर फिंगर्स। 6-8 से 13-8, तो 7-8-9-10-11-12-13, 7 days बेटा, इट इज कमिंग टू 7 days। सो यहां पर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट हम गिन लेंगे 7। इट वुड बी 7 days। ओके, देन नेक्स्ट 6-8 2017 से हम कैलकुलेट करेंगे 28 तक। सो यहां पर भी अगेन खाली अगस्त का ही हमको कैलकुलेट करना है। बेटा कैलकुलेट करके दो, नंबर ऑफ डेज आएंगे कितने। 6-8 से लेके 28 तक, 6-8 से लेके 28 तक। बेटा वेरी गुड, बहुत कम मैसेज आ रहे हैं, शाबाश शाबाश। ये होता है बेटा साथ में काम करना, ये होता है साथ में काम करना। चलो मैं ही गिन देता हूं। 6-8 से अगर मुझे 28 तक जाना है तो देर आर 14 days। सो यहां पर हम 14 लिख देंगे। ओके, देन नेक्स्ट वाली वर्किंग अगर हम देखें तो 6-8 2017 से हमें जाना है 6-8 2017 से हमें जाना है 27-8 2017 तक। 6-8 से 27-8 अगेन अगस्त के महीने में ही ये निपट जाएगा, अगस्त के महीने में ही निकल जाएगा। तुम बेटा जरा स्कॉलर बैच जरा बुद्धि चलाओ। हम पहले 6-8 से 13-8 तक गए, 7 दिन हुए, फिर 13 से 20 हुआ, मतलब और 7 days ऐड हुए, तो मैंने 7 में वो 14 में और 7 days ऐड कर दिए। फिर 20 से हम 27 तक जा रहे हैं, बेटा जरा बुद्धि चलाओ, ये 14 में और 7 days ऐड कर दो तो सीधा तुम्हारा 21 आ जाएगा ना। बेटा मैं समझो तुम्हें क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो तुम नहीं हो। मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू मेक यू स्मार्ट विच विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन। जो तुम नहीं थे लेकिन आप बन रहे हो, धीरे धीरे बन रहे हो, शाबाश, स्मार्ट बन रहे हो तुम बेटा। ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ के तुम बनोगे स्मार्ट। बेटा बन गए, स्मार्ट बन गए। नेक्स्ट वाले का आंसर दिखाओ जरा, बताओ क्या आएगा, मैसेज करो नेक्स्ट वाले का आंसर। शाबाश शाबाश। क्या है नेक्स्ट वाला, देखो जरा हमें कहां तक जाना है। नेक्स्ट वाले में हमें कहां तक जाना है। 6-8 2017 से हमें जाना है 2 सितंबर तक। बेटा 6-8 से हमें जाना है 2 सितंबर तक। तो अगस्त के हमारे कितने दिन रह जाएंगे। अगस्त के हमारे 6 दिन निकल गए। 21 में से अगर अपने 6 दिन निकल गए तो 25 दिन बचेंगे, 25 days बचेंगे। एंड सितंबर के हमें 2 तक जाना है, तो सितंबर के 2 दिन। सो टोटल इट विल बी 20। यहाँ पर ये 21 था, मैंने नहीं लिखा था, ये 27 days हो रहे हैं, 27 days हो रहे हैं। Are you getting 27 days? Are you getting 27 days? बेटा लास्ट वाले की बिना वर्किंग के भी तुम आंसर लेके आ सकते हो। लास्ट वाले का बिना वर्किंग के भी तुम आंसर लेके आ सकते हो। बेटा 2 सितंबर से 4 सितंबर तक हमको जाना है। 2 सितंबर से हमें 4 सितंबर तक, मतलब अभी हमने अगस्त 6 से 2 सितंबर तक देखो 27 days गिने, उसमें और 2 दिन ऐड कर दो,
तो लास्ट वाली डेज की वर्किंग विदाउट वर्किंग के भी अपने कर सकते हैं। लास्ट वाला हम विदाउट वर्किंग के भी कर सकते हैं। स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट कर दो। बेटा यूज योर कॉमन सेंस ना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो 6/8/2017 से हमको 4 सितंबर 2017 तक हमको जाना था, तो अगस्त के हमारे 25 दिन एंड सितंबर के हमारे 4 दिन, तो 29 डेज, राइट। लेकिन हमने ऊपर वाली वर्किंग देखो 2 सितंबर तक करके रखी थी 27 दिन की, और अभी 4 सितंबर तक और जाना था, तो उसमें और 2 दिन ऐड कर दो तो 29 डेज। बेटा फटाफट आंसर आ जाएगा, 29 डेज फटाफट आंसर आ जाएगा। बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट नाउ गेटिंग द टोटल। अमाउंट का टोटल कर देंगे हम और प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे, लेकिन टोटल प्रोडक्ट का करने से पहले हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 3000 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1500 इज 10,500, 7 इंटू 1500 इज 10,500, then 14 into 3500 is 49,000, 14 into 3500 is 49,000, 21 into 2250 is 47250। जरा कंफर्म करो ऐसे आंसर आ रहे हैं। बट 7 into 1500, 14 into 3500, 21 into 2250, then 27 into 2000, that is 54,000, and 29 into 1 is 29,000। ओके बेटा, टोटल करते हैं, या अमाउंट का टोटल हम कर देते हैं 13250। बेटा द टोटल इज 13250 and the total of the product is 189,750। the total of our product is 189,750। 189,750। but let's find out the average period। but let's find out the next thing is average period। 189,750 आपको उसको डिवाइड करना है, आपको उसे डिवाइड करना है 13250 से। 13250, 189,750 एवरेज पीरियड हमको मिल जाएगा इस तरह से। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट्स इक्वल टू 189,750 डिवाइड बाय 13250। 189,750 डिवाइड बाय 13250। बेटा 14.32 ऐसा कुछ डेज आ रहे हैं, 14.32 डेज, जिसको हम राउंड ऑफ करके 14 डेज ही लेंगे, जिन्हें हम बेटा राउंड ऑफ करके 14 डेज ही लेंगे। 14.32 को राउंड ऑफ करके 14 डेज। सो अब हम एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट कर सकते हैं। 6/8/2017 में मुझे ऐड करने हैं 14 डेज। तो बेटा 6/8 में जरा 14 डेज को ऐड करो। 6/8 में जरा 14 डेज को ऐड करो। 6 से 14 डेज अगर हम ऐड करें, सो बेटा मेरा फाइनल आंसर एवरेज ड्यू डेट का आ जाएगा 28/2017। बेटा 6/8 में अगर हम 14 डेज ऐड करें, 6/8 में हम अगर 14 डेज ऐड करें, तो मेरा बेटा एवरेज ड्यू डेट 28
2017. That's my final answer. 28, 2017. 20-8 बेटा 20-8. सो बेटा पैम्पलेट वाला सम पता चला जिसमें ये नंबर ऑफ डेज एंड ऑल जो दिए थे वो वाला सम पता चल गया. I don't know why people were making mistake. It was a very easy sum. Okay, but now what I want from your side is you need to solve question number 4 of your pamphlet. You need to solve question number 4 of your pamphlet. Now in that, but please be attentive. In that, we don't have to find the due dates. अगर हम सम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ड्यू डेट हमें पहले से ही मेंशन करके रखा है. They have mentioned the due date in advance. So हम अपने टेबल में जो भी वो डेट मेंशन करी होगी वो सीधा हम अपना ड्यू डेट ले लेंगे. उसमें 3 दिन का ग्रेस वेस कुछ ऐड नहीं करना है. जो डेट उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन करी है that itself is the due date. Okay, so by taking that as due dates we directly start the sum. कि बेस डेट फाइंड कर लो, नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लो एंड सम एकदम इजीली खत्म हो जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है जिसका आंसर मैं सैटरडे के जूम में आपको दे दूंगा. आई विल सॉल्व दैट सम एंड आई विल गिव यू द आंसर. आई वोंट बी सॉल्विंग दैट सम अलोंग विथ यू. मैं वो सम सॉल्व करके आपको आंसर उसका दे दूंगा. ठीक है बेटा, ठीक है. सुजल कौन सा सम बताऊं मैं, कौन सा सम बताऊं सुजल? सुजल अनम्यूट. सर आपने जो अभी कहा ना मेरा पैम्पलेट मिल नहीं रहा इसलिए वो सम का टेबल बताओ ना एक वो बार. मेरे पास नहीं है बेटा, अभी मेरे पास भी अभी मैंने उसका पीडीएफ नहीं बनाया है. मैं ओके जो सर. सम करता हूँ उसका फिर मैं वो वहां से कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. आई डोंट हैव दैट सम राइट नाउ विद मी. ओके सर. सो बेटा कर लोगे सम नंबर 4 कर लोगे तो अपने मिलते हैं. चलो नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को मिलते हैं. हाँ विंसेंट, अनम्यूट विंसेंट. Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग विंसेंट, क्या हुआ? My accounts college professor told me that internal exam will be made before or after Diwali, and unit 1 is there for accounts exam. Internal exam. अच्छा तुमको बेटा प्रोफेसर ने डिड शी गिव यू द सिलेबस? She told unit 1 is included for internal exam, and there will be one more unit, but that she'll tell later on. But then what are the topics are in unit 1 beta? That's what I'm asking you. Did she mention you the topics? Yeah, she gave screenshot. I'll send you screenshot. on Yeah, WhatsApp. please WhatsApp me so that we also start accordingly beta. Not to worry. Yes, sir. Okay, you send me that. I'll go through with the syllabus and then we'll proceed ahead in that way only. Yes, sir. Okay, Thank चलो ठीक है. चलो बेटा, bye. बाय 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 Bye. सर. Bye, bye, bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, bye. बाय सर. Bye, bye, bye.